again after the third day of crucifixion. It reminds us that faith conquers fear and hope conquers despair. Today we, the students of class 8 Lily, have prepared a skit on the sacred occasion of Easter. Exams are near. Some students trust only books while others believe faith gives them courage. Faith is useless, only books matter. He's right, I'm scared, praying won't help. Maybe he has a point. Is faith really useful? Books matter, but faith gives courage. Faith is not magic, it is strength in our hearts. Faith gives peace when we are afraid. Don't let fear control you, Navdeep. Faith makes us brave. Yes, faith gives us calm. Faith is the light that lights our lamp. See too, the lights went off and the rain starts. We can't study now. See, God didn't stop the power cut. Yes, it's just a sign, nothing to do with God. See, the rain has also started. Don't panic. Courage comes when we trust God, not when we fear. Let's pray for strength. Fear won't help us, but faith will. Let's have faith and trust in God, and the rain will stop soon. Darkness fades when hearts are bright. Scene 3. Teacher enters the class calmly and wisely. Good morning, students. Good morning, teacher. Faith is not against effort. God gives hope. Effort makes success. Effort writes your answers, but faith keeps your mind steady. But teacher, isn't just our hard work that matters? Teacher is right. Effort is our duty, but faith gives courage to keep trying. Faith gives peace when we are afraid. It's the calm inside us when the world feels dark. Hope and effort always walk hand in hand. Scene 4. The rain stops. See, God listens when we pray. Faith makes us believe that storms will pass. No, it's just a weather signs. Clouds move, rain stops. Yes, he's right. It wasn't it, God. Exactly. Weather changes on its own. Rain stops. Faith reminds us that even storm passes. Rain may stop, but faith goes on. Scene 5. A few moments later, the light returns. See, faith kept us calm and the light has returned. No, it was the electrician. Don't fool yourself. He's right. It wasn't it, God. Yes, science fixed it. Maybe the electrician fixed it, but faith kept us calm while we waited. Faith kept us calm. That's why we didn't panic. Faith belongs to those who believe. See, children, whether it was an electrician or God, what matters is how calmly you face the darkness. Scene 6. The exam moment. Prayer won't help. It's just a concentration. We feel it too. Strange, they look calm, but we are stressed. See the difference. Those who believe in God are confident and those who don't are nervous and stressed. Let's pray before we begin. Faith will steady our hands. Try it once, you will feel peace too. Faith will steady our hands. Try it once, shiny, you'll feel peace too. Faith makes us strong when we face challenges. Faith belongs to those who believe. Maybe faith does give strength. I feel it now. We feel it too. Remember, effort writes your answers, but faith keeps your mind steady. Scene 7. The grand finale. Faith and effort together make miracles. Exam tests knowledge, but faith gives courage. And just as Easter celebrates victory of life, faith celebrates victory of hope over fear. Believe in God, believe in light. Faith makes us strong in the darkest night.
With hope we rise, with courage we stand. God's love will guide this land. Faith and effort together make us strong. That is real success. Faith is not just belief, it's courage, peace and hope. Faith gives us confidence to face exams without fear. Faith in divine gives courage, effort brings success, together they make miracles. When we talk with faith, no fear can defeat us. Faith is the light that will guide us always. On Easter, we remember that light always returns, storm always pass, and faith gives us courage. Even in the hardest time, there is hope waiting for us. Let this message remind us to stay strong and believe in better days. Thank you. ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी और समर्पण से हमेशा दिलों में बस जाते हैं। सुप्रभात आदरणीय फादर अशोक सरदाना जी, आदरणीय सिस्टर टीना जी, आदरणीय सिस्टर अमूल्या जी, आदरणीय सिस्टर एल्से जी, अध्यापक अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने स्नेह, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से हमारे विद्यालय को अपना परिवार बना लिया है। आज हम अपने प्रिय गेट कीपर अंकल प्रकाश के रिटायरमेंट समारोह में उनका आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हैं। अंकल जी, आपने वर्षों तक इस विद्यालय के द्वार पर खड़े होकर केवल अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई, बल्कि हम सभी की सुरक्षा और देखभाल भी की। आपकी मुस्कान हर सुबह हमारा स्वागत करती थी और आपका स्नेह हमें हमेशा सुरक्षित महसूस कराता था। स्नेह हमें हमेशा निगाहें और जिम्मेदारी का भाव सबको हमेशा सुरक्षित महसूस कराता था। अब मैं हमारे स्कूल के हेड बॉय फिलेमॉन और हेड गर्ल संस्कृति से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने प्यार व सम्मान के प्रतीक स्वरूप बनाए गए कार्ड हमारे प्रिय अंकल को भेंट करें। अब मैं प्रकाश अंकल से निवेदन करता हूँ कि वे स्टेज पर आएं और कार्ड स्वीकार करें। अब मैं कक्षा दूसरी के पलक और कृतांश को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो एक सुंदर कविता के माध्यम से अपने भाव हमारे प्रिय अंकल के लिए व्यक्त करेंगे। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हर सुबह सबसे आप ही नजर आते थे, मुस्कुराकर हम सबका स्वागत कर जाते थे। धूप हो या बारिश हर मौसम में खड़े रहे, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़े रहे। स्कूल का ये दरवाजा अब सूना सूना लगेगा, आपका चेहरा हर पल हमें याद आएगा। आप सिर्फ गेट कीपर नहीं, हमारे अपने थे, हर बच्चे के लिए आप सच्चे सपने थे। आज विदा के इस पल में दिल थोड़ा भर आया है, आपने जो प्यार दिया वो कभी नहीं भुलाया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत ही भावपूर्ण कविता के लिए धन्यवाद बच्चों। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय शिक्षिका भागीरथी जी को, जो अपने शब्दों के माध्यम से बिताए गए पल हमारे प्रिय अंकल के लिए साझा करें। Good morning, Reverend Father Ashok Saldana, the manager of the school, Sister Tina, the principal, sisters and teachers and my dear students. आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं जो भले ही हमें कक्षा में नहीं पढ़ाते थे,
लेकिन पिछले कई वर्षों से इस स्कूल की और हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभाई है। हमारे प्रिय प्रकाश शर्मा जी जो आज अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अक्सर हम शिक्षकों और छात्रों की भूमिका पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन स्कूल के उस प्रहरी को भूल जाते हैं जो चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में भी मुख्य द्वार पर अडिग खड़ा रहता है। जी हाँ, प्रकाश जी के लिए यह स्कूल केवल एक कार्यस्थल नहीं बल्कि एक परिवार रहा है। सुबह सबसे पहले स्कूल के ताले खोलने से लेकर छुट्टी के बाद ये सुनिश्चित करने तक कि हर बच्चा सुरक्षित अपने घर चला गया है, इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को किसी ड्यूटी की तरह नहीं बल्कि एक धर्म की तरह निभाया है। बच्चों के लिए वे केवल वॉचमैन अंकल नहीं थे बल्कि एक ऐसे सुरक्षा कवच थे जिनकी मौजूदगी में हम सब खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। मुझे याद है कई बार जब किसी बच्चे को कोई तबीयत खराब हुई या कोई छोटा मोटा संकट आया तो प्रकाश जी ने सबसे आगे बढ़कर मदद की। और उनकी अनुशासनशीलता और साथ ही उनका सरल स्वभाव हम सभी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे करने का जज्बा होना चाहिए। प्रकाश जी का आज आपके जाने से स्कूल का मुख्य द्वार थोड़ा सूना जरूर लगेगा, लेकिन आपकी यादें, आपके द्वारा किए गए कार्य हमेशा इस परिसर की दीवारों में गूंजते रहेंगे। हम आपके स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं। आप यहाँ से रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों से कभी विदा नहीं होंगे। आपके निस्वार्थ योगदान के लिए पूरा परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। थैंक यू। धन्यवाद मैम आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। अब इस खास अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए मैं हमारे आदरणीय शिक्षकों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो एक मधुर गीत के माध्यम से अपनी भावनाएं हमारे साथ व्यक्त करेंगे।
प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। अब वह विशेष क्षण आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। अब मैं आदरणीय अध्यापकगण श्रीमती नीलम मैम, श्रीमती पूनम एंथनी मैम, श्रीमती अविनाश मैम, श्रीमती अनु सैनी मैम से निवेदन करता हूं कि वे स्टेज पर आकर उपहार दें। अब मैं आदर और श्रद्धा के साथ हमारे विद्यालय के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सम्माननीय फादर सर अशोक अल्दाना को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों से हमें सबको प्रेरित करें। Dear Sister Elsie, Sister Amulya, Mr. Prakash, my dear teachers, my dear students, good morning to you all. How are you? How many are happy to come to school today? Only few are happy to come to school. Okay, good, good. Put your hands down. Okay? We are going to celebrate Easter on Sunday. Now, Easter means hope against hope. है ना, हिंदी में बोलते हैं आशा कभी निराश नहीं करती. Hope never disappoints. Okay, I want to tell you one incident. I was in Chandigarh 12 years ago. You know, there is an hospital, PGI. Have you heard PGI hospital? Okay. There was a patient admitted whom I knew, and I went in the night 12 o'clock to meet him. Doctors all said there is no hope, he is going to die, he has got only 3 days to live. So Father Ambrose and I went there in the night, we prayed over him. Now after that prayer, the man, now it is 12 years past. He is still alive and still he is very active. That is called hope against hope. Doctor said he is not going to live, but he is today alive. That is for Easter, when everything we lose hope, when nothing happens to happen, and we say, ना सब कुछ खत्म हुआ, but सब कुछ खत्म नहीं हुआ, but everything we come to live, come to resurrection. That is what Easter means. आज अभी प्रकाश भैया के बारे में बोलना चाहता हूँ, है ना। प्रकाश भैया यहाँ 2001 से काम कर रहे हैं, 25 साल उन्होंने गेट संभाला है, हमारा सबका सुरक्षा का ध्यान दिया है ना। आप लोग सारे दिन में स्कूल आते हैं, दिन में वापस जाते हैं। प्रकाश भैया इधर दोपहर को भी होते हैं, रात को भी होते हैं, है ना। हम सारे सोते हैं रात को, लेकिन प्रकाश भैया रात को जागते रहते, स्कूल का रखवाली करते थे। मैं प्रकाश भैया को आभारी हूँ 25 साल की सर्विस के लिए, और यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की आशीष आप पर बना रहे, आपके परिवार बना रहे, और आपको मैं हैप्पी रिटायर्ड लाइफ बोलता हूँ, और सबको हैप्पी ईस्टर। थैंक यू। डियर अंकल जी, आज इस खास मौके पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने दिल की बात अपने अनुभवों के रूप में 2 शब्द हम सभी के साथ साझा करें। फादर जी, सिस्टर जी, हाँ ठीक, सिस्टर फादर जी, सबसे मेरा हाथ जोड़ के आभारी हूँ आपके। मैं जो भी किया सब कुछ ठीक किया है, आज जो भी है आपका कृपा से मैं सब ठीक। और मैं क्या बोलूँ, जो भी बोल दिया वो बस मैं यही शुक्रिया है आपका। आज सिस्टर जी और टीचर को सभी को बाय बाय कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बस इतना ही शुक्रिया है। हमारे स्टाफ को भी है
जो भी स्टाफ है सब भले से सब अच्छे किया है, जो भी कर रहा है सब ठीक कर रहा है। ठीक है। अंकल, आपने जो प्यार, सुरक्षा और अपनापन हमें दिया है वह हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। हम आपके उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।